ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ? ਐਟਮਸ, ਜੋ ਕਿ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲਸ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋਮਸਨਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੈਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਐਟਮਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਤੇ। ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ। ਸੋ 3 ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬੋਹਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ, ਦੈਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਬੋਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ, ਦੈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਹਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਵ ਨੰਬਰਸ ਫॉर द डिफरेंट ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੋਹਰਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੈਪਟਰ ਐਟਮਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ radius of the third orbit, third या बोहर्स orbit भी लिख सकते हैं, third बोहर्स orbit of the hydrogen atom। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਬੋਹਰਸ ਆਰਬਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਮਾਲ n। ਸੋ ਸਮਾਲ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦ ਥਰਡ ਬੋਹਰਸ ਆਰਬਿਟ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਲ r ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ n² h² over 4 pi² m कैपिटल K इंटू p²। सो अपने को जो जनरल एक्सप्रैशन आया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ कैपिटल Z भी सी डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हाँ, दैन Z की वैल्यू की होएगी 1। सो मैं इतने Z ਨੂੰ नहीं लिखिया, हुण मैं रेडियस का एक्सप्रैशन लिखिया है, बट ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज n² h² over 4 pi² m
कैपिटल के ई स्क्वायर। सो ਤੁਹਾਨੂੰ अगर याद ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, n ਕੀ ਹੈ, that is the principal quantum number ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ऑर्बिट ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ऑर्बिट ਹੈ। h ਕੀ ਹੈ, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 into पाई, पाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 22/7 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। m ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕੈਪੀਟਲ k ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ K ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 into 10⁻9। then E रह गया, E की है the value of electronic charge 1.6 into 10⁻⁻19। सो सारिया चीज़ां आपां नूं पता हैं और क्वेश्चन आपां नूं n भी गिवन है। सो n नूं आपां 3 पुट करांगे। सो सारिया वैल्यूज़ इत्थे पुट करन तो बाद आपां देखांगे कि अपने कोल रेडियस कितना आ रहा है। सो आपां वैल्यूज़ पुट करिए और देखिए इहदा आंसर। सो सब तो पहले आपां स्मॉल n दी वैल्यू पुट करांगे, दैट इज़ 3 दा स्क्वायर की है 9, h स्क्वायर, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। दो बारी लिखांगे बिकॉज स्क्वायर है। 6.6 10 की पावर की है -34। सो इन्हों भी दो बार लिखना है, या फिर आप इहदा स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही गल है। ओवर 4 इंटू पाई स्क्वायर, पाई कितना होंदा है 22/7, स्क्वायर है दैट इज वाई, दो बारी लिखांगे 22/7। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। कैपिटल K ओदी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। और लास्टली आपने कोल की है स्मॉल e। सो स्मॉल e दी वैल्यू वो होंदी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्क्वायर कर रहे हैं इस करके दो बार लिखांगे। सो 10⁻⁻19 दा स्क्वायर। सो इत्थे भी स्क्वायर सी, उन्होंने मैं खोल के लिखता बिकॉज आपां कैंसलिंग करनी है। हुण आपां की करांगे, जीरो जिहड़े 10 दी पावर्स हैं उन्हां नूं अलग कर लईए और बाकी चीज़ां की हैं उन्हां नूं अलग रखिए। ऑल्सो इत्थे अपने कोल पॉइंट्स भी हैं। सो पॉइंट दे नाल अगर आपां पॉइंट कैंसिल करिए, सो असल च हुंदा की है, पॉइंट हटावांगे नीचे एक 10 आएगा, आ वाला पॉइंट हटावांगे ऊपर एक 10 आएगा। 10 और 10 कैंसिल होंदे हैं। सो आपां सीधा ही की करते हैं, पॉइंट दे नाल पॉइंट एज सच ही कैंसिल कर दिंदे हैं। अगेन एक होर पॉइंट और एक पॉइंट इत्थों कैंसिल तां ही उदों ही करांगे जदों पॉइंट दे पिछे उन्ने ही डिजिट्स हैं जिन्ने की दूजी क्वांटिटी दे पिछे होण। सो उन्ने ही डिजिट्स होने चाहिए हैं। एक पॉइंट अपने कोल इत्थे बचिया, ये पॉइंट रिमूव करके अपने कोल ऊपर एक होर 10 आ जाएगा। हुण आपां की है इहनूं थोड़ा रीअरेंज कर लीए। सो 9 इंटू 66 इंटू 66, बाकी 10 दिया पावर्स 34 दा स्क्वायर जब आप करांगे अपने कोल 68 -68 आएगा। नाल की है 10 दी पावर 1 और अपन नूं पता है मैथ्स दे विच कि 10 दी पावर अपने कोल 68 है इत्थे, दैट इज -68। जो बेसिस सेम होंदे हैं दैन जिहड़ी उहदी पावर हुंदी है वो एड अप हो जाती है। सो अपने कोल इत्थे की आया सी 34 दा स्क्वायर करके दैट इज -68। इत्थे 10 दी पावर 1 है। सो बेस सेम होने दे करके पावर्स ऐड। नीचे ऑल्सो अपने कोल 7 और 7। हुण डिनोमिनेटर दे विच एक होर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है। सो डिनोमिनेटर च p/q फॉर्म प्रेजेंट है और आपां नूं पता है मैथ्स दे विच आपां देखिया कि जो ये डिनोमिनेटर हुंदा है वो एक्चुअल दे विच न्यूमरेटर दे विच जाके मल्टीप्लाई हुंदा है। सो अपने कोल एक होर टर्म है इत्थे, दैट इज 7 इंटू 7 49। देन हुण नीचे 4 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 91 इंटू 9 इंटू 16 और बाकी की बचियां 10 दियां पावर्स 10 दी पावर -31 और लास्ट दे विच की बनेगी 19 दा स्क्वायर करांगे 38 -38 एंड -31 -69। सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज करके बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड। सो -31 एंड -38 नाल की है 10 दी पावर 9। अगेन बेसिस सेम, बेस दे विच 10 है, पावर की हो जाएगी ऐड। सो पावर ऐड। हुण आपां देखिए कैंसलिंग कितने कितने हो रही है, उस तो बाद डिवाइड करांगे। सो इत्थे 11 2s are 22, 11 6 are 66,
again 11 2s are 22 and 11 6 the 66, then 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 9 as such 9 ਦੇ ਨਾਲ cancel। सो अपने को ऊपर ਹੁਣ 49 है 3 and 3। सो अगर कोई होर कैंसलिंग ओके इत्थे 7 ਦੇ ਨਾਲ कैंसलिंग एक होर हो सकती है 7 7s are 49 और इत्थे 7 1s are 7। सो ਜਿਹੜਾ 2 बचिया इत्थे 21 बच गया 7 3s are 21। सो इस तो इलावा और कोई कैंसलिंग पॉसिबल नहीं है। 7 3 and 3 अपने को ऊपर आ रहा है 3 3s are 9, 7 9s are 63 और डिनोमिनेटर च अपने को की बचिया 4 13 16 and 16 चार टर्म्स हैं। 16 का स्क्वायर 256 डायरेक्टली एज सच यूज़ कर रही हैं। 13 4s are 52 सो दोनों मल्टीप्लाई करिए 256 and 52 6 5s are 30, 5 5s are 25 plus 3 28, 5 2s are 10 plus 2 12। सो अपने को डिनोमिनेटर आया है 1 3 3 1 2। एक चीज़ रह गई 10 दिया पार्स -68 प्लस 1 -67। नीचे की है -69 प्लस 9। सो 69 चो 9 गया 60 बट विद नेगेटिव साइन बिकॉज वो वैल्यू वड्डी है। सो हम दोनों को कंबाइन करना होवे सो बेसिस सेम ने बट दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं दैन जड़ियाँ पावर्स होंदियां हैं वो माइनस होंदियां हैं। सो मैं इत्थे ही आ वाला स्टैप कर रही हाँ। सो इत्थे आपां की करांगे -60 जब ऊपर जाएगी एक ही बनेगी 10 दी पार प्लस 60। हुण अगेन इत्थे आपां वही सेम फॉर्मूला लगावांगे बेसिस सेम पावर्स विल गेट ऐड। सो ऐड करन तो बाद अपने को इत्थे 10 दी पार की बनेगी। सो 67 चो 60 जाएंगे बिकॉज माइनस प्लस माइनस अपने को बचनगे 7 बट वड्डी वैल्यू की है नेगेटिव साइन दे नाल दैन -7। हुण एक कम रह गया अपना आपां इहनूं डिवाइड करांगे। सो डिवाइड करन दे लई 63 नूं 1 3 3 1 2। सो पहले तो आपां नूं की है पॉइंट लगा के जीरोज उतारनियां पैणगियां। पॉइंट हजे भी नहीं जा रहा है वैल्यू वड्डी है एक होर जीरो। सो हजे भी स्टिल ये वैल्यू वड्डी है एक होर जीरो। हुण आपां की है मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो चेक करिए कि किन्ने ते अपना जाएगा। सो राउंड अबाउट 4 या 5 पे की है जाएगा। अगर आप चेक करिए 1 3 3 1 2 4 2s are 8 4 1s are 4 4 3s are 12 4 3s are 12 plus 1 13 4 1s are 4 plus 1 5। ओके सो आपने को लाया है 5 3 2 4 8। ठीक है 4 ते ही जाएगा बिकॉज 5 ते वैल्यू ज़्यादा वड्डी हो जाएगी। 4 5 3 2 4 8 12 अगेन इधर कैरी 9 9 और इधर 10 2। सो 9 चो 4 गए 5 9 चो 2 गए 7 12 चो 3 गए 9। अगेन एक होर जीरो। हुण अगेन चेक करिए किन्ने ते जाएगा 7 या 8 1 3 3 1 2। अगर पहले 7 ते चेक करिए 7 2s are 14 7 1 is 7 plus 1 8 7 3s are 21 7 3s are 21 plus 2 23 7 1s are 7 plus 2 9। ओके 7 ते ही जा रहा है बिकॉज अगली वैल्यू की है वड्डी हो जाएगी 9 3 1 8 4। अगेन आपन की इथों कैरी लेना पड़ेगा 4 11 6 3 इतने 4 है नीचे 1 3 एंड 4 अगेन 0। सो जस्ट एक होर चेक कर लीजिए इस तो ज़्यादा अगे नहीं जावांगे। सो 1 3 3 1 2 एंड 4 3 3 6 0। सो 3 या 4 थे आई थिंक 1 3 3 1 2। अगर 3 ते देखिए 3 2s are 6 3 1s are 3 3 3s are 9 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 4 ते भी चेक कर लीजिए 4 ते अगर आप चेक करांगे 1 3 3 1 2
4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12 plus 1 13, 4 1s are 4 plus 1 5। ओके 4 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0.00473। रेडियस कैलकुलेट किया है, यूनिट्स की आएंगे दैट इज इन मीटर, बिकॉज आप सारिया वैल्यूज जड़ियाँ पुट कीतियां स्टैंडर्ड मीनस ऐसा यूनिट्स रखियां सी। हुण अगर आप पॉइंट शिफ्ट करिए 1 2 3 वैल्यू नूं मैं वड्डा कीता है, सो इधर ही आप की है 3 का डिफरेंस लैके आवांगे। इनू वड्डा कीता तां इनू छोटा करना पएगा, मीनस इनू होर छोटा करता। सो 3 जीरोज होर ऐड कर दिए। छोटा कितना होया, बिकॉज -7 ते -10 दे विचों छोटा किहड़ा है -10, बिकॉज नाल नैगेटिव साइन है। सो ये तरीका हुंदा है कि इधर आप की है पॉइंट्स तो उन्होंने 4.73 च कन्वर्ट किया। बच्चे जनरली ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, सो मैं इनू इस तरह याद रखती हाँ, पॉइंट्स तो इनू वड्डा करता 4.73, किन्ने डिजिट्स नाल कीता 3, सो उन्नियां ही जीरोज आप इधर की है उन्होंने घटाना है। सो घटावांगे किदां, अगर तो +7 हुंदा फिर आप की है 3 जीरोज घटा देनियां सी, 10 की पावर 4 आ जाना सी। घटाउण दा की मतलब है होर नैगेटिव करना है। सो इत्थे की हन 3 होर जीरोज नैगेटिव वालियां। सो अपने को आ गया 10 की पावर -10 मीटर्स। और फाइनली आप इनू लिख सकते हाँ 1 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू की होंगी है दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर्स। सो तुसी देखिया होएगा कि न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है। जस्ट इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के आपको एक्सप्रैशन याद रखने हैं। सो एक्सप्रैशन याद है, उस तो बाद मेन पार्ट इज़ द कैलकुलेशन। सो जिन्हें भी आप होर 1-2 न्यूमेरिकल्स करांगे सब दे विच कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। सो इस तो बाद आप नैक्सट न्यूमेरिकल वाल चलिए। सो हुण आप चलते हैं अपने नैक्सट न्यूमेरिकल दे वाल। सो दी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द approximate quantum number मीन्स की भी गल कर रहे हैं आप स्मॉल n फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम revolving in an orbit of radius 1 millimeters। सो ये अपनी अगली स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट। सो तकरीबन अपने कुल की है सही अपने कोल क्वांटम नंबर आएगा। सो अप्रॉक्सीमेट लिख देने हैं, बिकॉज कई बार पॉइंट्स विच कुछ वैल्यू आ जाती है। अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं इतने। अप्रॉक्सीमेट क्वांटम नंबर मीनस कि मान लो 2 बहुत वड्डी वैल्यू आ रही है 256 या 256 पॉइंट समथिंग। सो दैट इज़ वाई अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज़ किया है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो एटम अगेन आप ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर्स। सो की क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम दे विच की है इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट दे विच, लेकिन केड़ी ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है ओदा रेडियस आपां गिवन है 1 मिलीमीटर, लेकिन आपां ये नहीं पता कि ऑर्बिट नंबर की है, वही आप कैलकुलेट करना है जिन्हों की इत्थे क्वांटम नंबर लिखा गया है। मतलब वो किन्नवी ऑर्बिट है जिदा रेडियस आपां गिवन है 1 मिलीमीटर और उहदे च इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन नूं। सो जब आप रेडियस का एक्सप्रैशन किया सी रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, आप चेक किया जो रेडियस का एक्सप्रैशन आया वो बाकी सब चीज़ां की सीगियां कांस्टेंट सी। सो एक अपने को n² आ रहा सी। सो इस तो पिछले न्यूमेरिकल ही मैं लिखा सी आर द एक्सप्रैशन। सो वो बाकी सब चीज़ां की हन कांस्टेंट हन, सिर्फ n की है वेरिएबल। सो एक बार मैं दोबारा लिखता कि कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाए। n² h² ओवर की सी 4π² m कैपिटल की e²। ए भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, पाई दी वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, कैपिटल के भी कांस्टेंट, ई की है ये भी कांस्टेंट है। सो जस्ट डिपेंडेंस की देते हैं आर दी
n ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ n ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬਿਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ n ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R2 over R1 equal to N2 square over N1 square। सो बहुत सिंपल जी चीज़ है। जो आप लिखांगे R2 प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, एक बार लिखांगे R1 प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटा भी रही है, जोड़े कॉन्स्टेंट्स आउणगे डिवाइड करन ते कॉन्स्टेंट्स रिमूव हो जाएंगे। सो सिंपली आप की लिख सकते हैं रेशियो ऑफ R2 ओवर R1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर, बिकॉज इत्थे भी स्क्वायर है, ओवर N1 स्क्वायर। हुण आपां नूं क्वेश्चन की गिवन है वो लिखिए। सो एक तो आपां रेडियस। सो इस तो पहले जब आप ऑर्बिट फर्स्ट की गल करिए, उहदे लई n की वैल्यू कितनी होएगी? इत्थे आप n1 लिख रहे हैं। सो n1 की वैल्यू की है 1। पहली ऑर्बिट के लिए रेडियस कितना हुंदा है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो ये भी आपां की है थियरी च पढ़िया है। सो एक्सप्रेशन जब सारिया वैल्यूज आप पुट कर लेने हाँ, n नूं 1 पुट कर लेने हाँ, अपने को रेडियस कितना आउंदा है 0.53, जो कि मैं कैलकुलेट करके दिखाया सी अपने पिछले लेक्चर्स दे विच। दो चीज़ां हन। दैन इस तो इलावा हुण R2 ते N2 दे विचों अपने कोल एक होर चीज़ है, दैट इज़ द रेडियस। सो अपने कोल R2 भी गिवन है 1 mm। सो 1 mm मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स। सो एक मीटर दे विच की हुंदे हन 1000 मिलीमीटर या फिर 10 की पावर 3 मिलीमीटर्स। सो अगर 1 मिलीमीटर्स कैलकुलेट करने हों, कितने मीटर्स होंगे? आ क्वांटिटी डिनोमिनेटर से जाएगी। सो 1 ओवर 10 की पावर 3 की बन जाता है 1 ओवर 10 की पावर 3 10 की पावर -3 मीटर। सो आई थिंक तुहानूं पता होएगा इस चीज़ बारे। सो मिलीमीटर नूं 1 मिलीमीटर नूं मैं मीटर च कन्वर्ट कर लिया 10 रेज़ टू पावर -3। दैन कैलकुलेट की करांगे आपां N2। सो मतलब पहली ऑर्बिट दे विच N1 1 है, पहली ऑर्बिट ਉਹਦਾ रेडियस इन्ना हुंदा है, आपां नूं पता है। रिवॉल्व कर रहा है किसी होर ऑर्बिट दे विच, आपां नूं नहीं पता किहड़ी ऑर्बिट है, नंबर नहीं पता क्वांटम नंबर, बट ਉਹਦਾ रेडियस पता सी। सारिया वैल्यूज़ नूं की करना है, आपां पुट करांगे इन दिस फॉर्मूला। सो N2 नूं एक साइड रखते हुए, बिकॉज आपां N2 कैलकुलेट करांगे N2 ओवर N1, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, इनू आपां इस तरह होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R2 बाय R1। होल स्क्वायर नू अगर हटाना होवे, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लीए, टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन द बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट का की मतलब हुंदा है ओदी पावर नू 1/2 कर रहे हाँ। सो 2 × 1/2 मीनस स्क्वायर ऑलरेडी सी, ऊपर 1/2 करता। दैन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल हो जाते हैं, अपने कोल की आ गया N2 बाय N1 R2 बाय R1। हुण N2 नूं एक साइड रखते हुए N1 नूं भी दूसरी साइड ला जाइए। N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ R2 बाय R1। सो हुण जस्ट वैल्यूज पुट करनी रह गई है। N2 जो कि आप कैलकुलेट करांगे इज इक्वल टू N1, दी वैल्यू है 1 अंडर रूट R2 बाय R1। R2 है 10 की पावर -3 ओवर R1 कितना है। सो सेम यूनिट्स रखने के लिए एंगस्ट्रॉम नूं भी आपां की है मीटर्स च कन्वर्ट करिए। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10, सो ये सी 1 मिलीमीटर। सो 10 की पावर -10 मीटर्स। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। सो ये वैल्यू मैं पुट करांगी इत्थे 0.53 × 10 की पावर -10। हुण इनू कैलकुलेट करिए और अपने कोल की आ जाएगा N2। सो बाहर 1 है, सच 1 नूं लिखण की जरूरत नहीं। अंदर हुण जब 10 दी पावर्स कंबाइन करांगे, सो ये जब ऊपर जाएगा की बनेगा 10 की पावर +10। सो न्यूमरेटर अपने कोल की आएगा 10 की पावर -3 × 10 की पावर +10। बेसिस आर सेम, पावर्स की होंगियां एड अप। सो 10 - 3 की आ जाएगा 10 की पावर 7। सो रूट दे अंदर आ गया
10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7। अगर मैं 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ना लिखते हुए 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 इंटू 10 इस तरह ब्रेक करके लिखा। ਇਹ क्यों लिखिया? बिकॉज रूट के अंदरों आप की है कुछ टेंस बाहर लेके आ सकते हाँ। किस तरह? रूट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ब्रेक भी कर सकते हाँ। लाइक अंडर रूट ऑफ न्यूमीरेटर आप इदा भी लिख सकते हाँ कि अंडर रूट ऑफ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ 0.53 सॉरी। और अगर आप अंडर रूट ऑफ 10 ਦੀ पावर 6 देखिए कितना आएगा? 10 ਦੀ पावर 6 ऊपर की है 1/2 सो 2 3 ज़ा 6 अपने को इत्थे की बचे 10 ਦੀ पावर 3 सो रूट तो बाहर आ गया। सो रूट दे नाल 6 ਦੀ कैंसलिंग की है मैं। सो अपने को 10 ਦੀ पावर 3 बाकी की बचे 10/0.53 सो यदि अगर कैंसलिंग वगैरह करिए आप 10 हुण इकट्ठा कर रही हाँ मैं सारा एक मतलब अपनी मर्जी है कि आप रूट दे विच सारा कुछ रखना है या फिर उन्होंने ब्रेक करना है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। सो हुण रूट दे विच की है 10/0.53 पॉइंट अगेन अगर आप हटावांगे सो पॉइंट हटाया 2 जीरोस ऊपर। हुण 1000 ਨੂੰ 53 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करिए और रूट दे विच लिखिए दैन उन्होंने 10 ਦੀ पावर 3 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई। सो डिवाइड करिए आप टर्म 1000 ਨੂੰ 53 ਦੇ ਨਾਲ। तो ये मैं रब करा 1053। सो पहले अगर आप 100 तक ही गल करिए सो पहले 1 पे जाएगा 9 7 47 0 7 या 8 थे 8 5 40 and 2 4 ओके 8 थे 4 24 6 4 अगेन एक जीरो कितना आएगी हूँ बिकॉज इतने कोई जीरो नहीं बची पॉइंट लगाया और एक होर जीरो अगेन 8 ते जाएगा साफ दिख रहा है 8 सो 460 चो आप 424 माइनस करने हैं 460 424 6 एंड 3 एक होर जीरो जस्ट आप 2 डिजिट्स ही लवांगे पॉइंट तो बाद। सो 360 अपना हुण 8 ते ना जाके हुण अपना 7 ते जाएगा। सो जस्ट इतने ही रोकते हुए आंसर ले लीए आप 18.87। ओके और लास्ट स्टेप की है अंडर रूट। सो अंडर रूट मैं पहले काफ़ी लेक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कि आप किस तरह अंडर रूट कैलकुलेट करते हाँ। ਹੁਣ दोबारा तो इतने मैं अंडर रूट कैलकुलेट ना करते हुए सीधी वैल्यू पुट कर रही हाँ 18। सो राउंड अबाउट ये 4.34 कुछ इन्ना आएगा 4.344। जस्ट हुण आपां की करना है इनू मल्टीप्लाई करिए। सो 10 ਦੀ पावर 3 सो ये पॉइंट शिफ्ट होएगा। पॉइंट शिफ्ट कितना होएगा 3 जीरोज हैं या फिर अगर इदा डिफिकल्ट लग रहा है पॉइंट हटाइए 3 जीरोज नीचे आ 3 और आ 3 कैंसिल। अपने को एंड ते आंसर की आया N2 = 4344 विदाउट एनी यूनिट्स। यूनिट कोई नहीं आएगा बिकॉज आप कैलकुलेट की कीता है क्वांटम नंबर स्मॉल n मीनस आपू ऑर्बिट के बारे दस रहा है कि केड़ी ऑर्बिट है। सो अपने को ऑर्बिट केड़ी आई 4344 और उहदा रेडियस कितना होएगा 1 मिलीमीटर जिहदे विच की है इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा सी। सो आप जस्ट की है यही प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ की कि R प्रोपोर्शनल है n² दे जस्ट आप फिर 2 ऑर्बिट्स की गल करते हुए आप उस तो बाद कैलकुलेट किया N2। सो ये अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। हुण एक होर न्यूमेरिकल करिए। सो हुण आप करिए अपना अगला न्यूमेरिकल। सो स्टेटमेंट देखिए की गिवन है which level of doubly ionized lithium has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom। सो दो किदी गल कर रहे हाँ एक हाइड्रोजन एटम की और नाल की है डबली आयनाइज्ड लिथियम। सो आप की चेक करना है कि किहड़े लैवल दे विच लिथियम के केस दे विच जिहड़ी एनर्जी होएगी किहड़ी एनर्जी के बराबर होएगी द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो आप कैलकुलेट की करना है इत्थे लेवल मीनस आप स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर ऑर्बिट बारे दसना है कि केड़ी ऑर्बिट होएगी। कंपेयर द ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ द
टू लैवल्स, मतलब हम जो लैवल इतों कैलकुलेट करांगे और दूसरा लैवल किहड़ा है दैट इज़ द ग्राउंड लैवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो वो दोनों लैवल्स का जो रेडियस होएगा उन्होंने भी आपस च कंपेयर करांगे, मीनस देखांगे कि आपस च की रिलेशन है दोनों का। सो हुण आपां स्टार्ट करिए पहले पार्ट तो, एनर्जी देखिए। सो आपां नूं पता है कि आपां एनर्जी द एक्सप्रैशन जो कैलकुलेट कीता सी एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ है अगर डिपेंडेंस देखिए, सो कॉन्स्टेंट्स ना लिखते हुए जस्ट डिपेंडेंस देखिए कि किस किस ते डिपेंड करती है। सो दो चीज़ां होंदियां हन, वन इज़ z² ओवर n², बाकी सारिया टर्म्स की होंदियां हन कॉन्स्टेंट होंदियां हन। सो वो मैं इत्थे नहीं लिखिया, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हुण आपां की है दोनों एनर्जीज़ नूं बराबर अगर रख लीए, सो जो कंडीशन उन्होंने दिती है वो कंडीशन लगा के आपां की है लैवल कैलकुलेट करांगे। की कंडीशन लावांगे, एनर्जी इन केस ऑफ लिथियम इज़ इक्वल टू एनर्जी इन केस ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो मैं इत्थे लिख रही हाँ एनर्जी फॉर लिथियम इज़ इक्वल टू एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। सो एनर्जी की जगह हुण मैं z² ओवर n² लिख रही हूँ, बट फॉर lithium again z² over n² for hydrogen। सो इत्थे डिपेंडेंस है बिकॉज अगर आप डिपेंडेंस हटा भी देवांगे अपने को इत्थे एक कॉन्स्टेंट आएगा। सो कॉन्स्टेंट इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, वो आपस कैंसल ही हो जाएंगे। सो सिंपली मैं की है ये चीज़ लिखती। हुण आपां की है वैल्यूज पुट कर लीए, z की वैल्यू लिथियम के लिए, सो तुहानूं पता होएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सो इहदा z कितना हुंदा है 3, सो 3 दा स्क्वायर। n ये आप कैलकुलेट करना है, सो दिस इज़ फॉर लिथियम। सो हुण आप ये हटा भी सकते हैं बिकॉज आप वैल्यूज पुट कर दी हैं, इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू बिकॉज यदी पोजीशन की है ऑन नंबर 1, z इज़ 1 दा स्क्वायर, या फिर z की हुंदा है दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो हाइड्रोजन विच एक हुंदा है। n ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट मीनस पहली ही ऑर्बिट की गल कर रहे हैं आप, दैट इज़ 1 दा स्क्वायर। सो अपने को 9 ओवर n² इज़ इक्वल टू 1/1, या फिर n² इज़ इक्वल टू, सो n² इत्थे जाएगा, सो अपने को n² कितना आ गया 9, और नेक्स्ट स्टैप आप स्क्वायर नूं जब इधर लेके जावांगे √9 दैट इज़ 3। एक्चुअल जब आप मैच करते हैं अपने को रूट तो बाद दो वैल्यूज आउंदियां हन प्लस एंड माइनस, लेकिन आप सिर्फ एक वैल्यू लई है +3 बिकॉज जो ऑर्बिट नंबर है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अपने को n आ गया 3, सो अपना पहला पार्ट इतने खत्म हो गया, दैट इज n इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट, कंपेयर द ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ द टू लैवल्स। रेडियाई प्लूरल फॉर्म है, सो एक तो ज़्यादा रेडियस की गल कर रहे हैं तो रेडियाई। सिमिलरली जिवें आप इत्थे डिपेंडेंस चेक की सी, उस तरह अगर रेडियस लिखना होवे फॉर nth ऑर्बिट, सो वो रेडियस डिपेंड करता है, इत्थे सी z² ओवर n², बट इत्थे अपनी डिपेंडेंस होंदी है n²/z। सो हुण वही मैथड अपनाते हुए मैं लिख रही हाँ रेडियस फॉर लिथियम, रेडियस फॉर हाइड्रोजन। सो ऊपर की आएगा n²/z फॉर लिथियम ओवर n²/z फॉर हाइड्रोजन। सो वैल्यूज पुट करन ते लिथियम दे लिए अपने को हुण n कितना है दैट इज 3 द स्क्वायर ओवर z कितना है दैट इज अगेन 3 ओवर हाइड्रोजन दे लिए अपने को n भी 1 है और z भी 1 है। सो डिनोमिनेटर दे विच सिंपली अपने को की आएगा 1/1, सिंपली मैं 1 लिख दिता। सो कैंसलिंग तो बाद अपने को जो आंसर आया दैट इज रेडियस फॉर द लिथियम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। सो 3 टाइम्स कितना, बिकॉज ए रेशो आई सी इज इक्वल टू 3, सो इनू उधर ले जाइए। सो अपने को रेडियस फॉर लिथियम इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 गुणा द रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। सो ये आप ऑर्बिटल रेडियस नू रेडियाई नू आपस कंपेयर कर लिया, और इत्थे आप की है एनर्जीज यूज़ करते हुए n की वैल्यू कैलकुलेट की। सो ये सी अपना थर्ड न्यूमेरिकल। सो अज के लेक्चर दे विच आपां न्यूमेरिकल्स डिस्कस की अबाउट द चैप्टर एटम्स। सो अगले लेक्चर दे विच आपां अगला चैप्टर शुरू करांगे सेम यूनिट का जिसका नाम है न्यूक्लियाई। सो अज दे लिए फिलहाल इन्ना ही कम है। थैंक यू।